Hello students. Beta, in my last video we discussed Jacobian and examples of Jacobian. Beta, today we continue examples of Jacobian. Beta, very important example. If y1 equal to r cos theta 1, y2 equal to r into sin theta 1 into cos theta 2, y3 equal to r sin theta 1 sin theta 2 cos theta 3, yn minus 1 term beta r sin theta 1 into sin theta 2 sin theta n minus 2 cos theta n minus 1 and yn r sin theta 1 sin theta 2 sin theta n minus 1. Beta point note cos theta n minus 1 उरे बेटा नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है बेटा. इच कितना sin theta n minus 1 उरे cos theta n minus 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स सेम है बेटा. देन बेटा इस दे विच एक रिजल्ट बनेगा बेटा. इस तरफ ध्यान दियो एक मिनट प्लीज. मान लो फर्स्ट टर्म ले ली बेटा r cos theta 1, सेकेंड टर्म ले ली r sin theta 1 cos theta 2, थर्ड टर्म बेटा मैं देखो बेटा n तक नहीं कर रहा बेटा, मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स ही लिख रहे हैं. देखो सुन नोट कितनी बेटा सेकंड लास्ट टर्म थे थर्ड लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट टर्म थे लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म सेम है बेटा. मैं लास्ट टर्म y3 लिख रहे हैं r sin theta 1 sin theta 2 because these all terms are sin ਦੇ ਵਿੱਚ. सो बेटा मैं लिख दिया बेटा ਨੂੰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ओके r स्क्वायर cos स्क्वायर theta 1 प्लस बेटा आह कॉमन आ जू ना स्केयरिंग देखो जो प्लस करांगे r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 1. So r square common cos के theta 1 plus sin के theta 1 1. So we have beta squaring and adding. So we have y1 the square plus y2 the square plus y3 the square plus yn the square equal to r square. Okay बेटा मैं इस शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ. So this one ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ बेटा y1 square plus y2 square plus y3 square up to yn the square equal to r square. Okay. So we partial derivative with respect to r, partial derivative with respect to r की आ जाए बेटा 2y1 del y1 upon del r 2y2 del y2 upon del r up to 2yn del yn upon del r 2r. So cancel 2. We have y1 del y1 upon del r, y2 del y2 upon del r up to yn del yn upon del r equal to r. So जो r ਨਾਲ partial derivative क्यों किया बेटा ਆਪਾਂ जो जैकोबियन लगावांगे बेटा del y1 upon del r भी हो del y2 upon del r. So मैं बेटा पहला partial derivative कर लिया फिर बेटा थीटा नाल भी आएगा. सो सिमिलरली बेटा थीटा 1 नाल कितना आ गया सिमिलरली थीटा 1 नाल y1 del y1 upon del theta 1 y2 del y2 upon del theta 1 last yn del yn upon del theta 1 equal to 0 because in this side right hand side r the function है आप कितना कर रहे हैं बेटा थीटा 1 सो दिस वन 0. ओके सिमिलरली बेटा y1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 y2 del y2 upon del theta 2 yn del yn upon del theta 2 इक्वल टू 0. लास्ट किसमें करांगे बेटा थीटा n minus 1 del theta n minus 1 y2 del y2 upon del theta n minus 1 last yn del yn upon del theta n minus 1. So beta this first equation and these equation beta second. Okay beta सारे यूज होंगे जो ਆਪਾਂ जैकोबियन करांगे बेटा सॉल्व करांगे. So beta then we find Jacobian beta. Next del y1 y2
y3 yn upon del r theta 1 theta 2 theta n minus 1. This one equal to del y1 upon del r, del y1 upon del theta 1, del y1 upon del theta 2, del y1 upon del theta n minus 1. Next beta, del y2 upon del r, del y2 upon del theta 1, del y2 upon del theta 2, del y2 upon del theta n minus 1. Okay beta. Last, del yn upon del r plus del yn upon del theta 1, del yn upon del theta 2, del yn upon del theta n minus 1. Okay beta. So beta, we multiply last term with yn because beta अपनी कैलकुलेशन जे आप बेटा लास्ट फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट रो तो स्टार्ट करांगे अपने थोड़े डिटरमिनेंट एक्सपैंड करने च प्रॉब्लम आएगी जे आप लास्ट तो शुरू करते हैं बेटा देखियो आर एन टर्म नु मैं वाई एन नाल की करता मल्टीप्लाई करता सो वी हैव 1 बाय वाई एन दिस वन del y1 upon del del y1 upon del theta 1, del y1 upon del theta 2, del y1 upon del theta n minus 1. Okay. Del y2 upon del y2 upon del theta 1, del y2 upon del theta 2, del y2 upon del theta n minus 1. बेटा लास्ट टर्म में वाई एन ना मल्टीप्लाई करता वाई एन del yn upon del yn del yn upon del theta 1, yn del yn upon del theta 2, yn del yn upon del theta n minus 1. ओके बेटा अपने जी फर्स्ट इक्वेशन बनी सी बेटा वो की सी बेटा y1 del y1 upon del y2 del y2 upon del yn del yn upon del r equal to r. ओके बेटा अपने यही है सेकंड जो थीटा कितना से इधर किया है बेटा 0. सो Rn tends to okay R first टर्म बेटा y1 प्रॉपर्टी यूज कर रहा है बेटा डिटरमिनेंट दी y1 बेटा r1 नु y1 नाल इस नु y2 जी लास्ट टर्म है उस नु बेटा अपने लास्ट रो नु बेटा ऐड करता सो जो बेटा ऐड करांगे इस रो दे विच तां जो सारे ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੀਟਾ 1 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੀਟਾ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਕੀ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀ ਬੇਟਾ 0 ਦੇਖੋ ਸੋ ਦਿਸ ਵਨ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ y1 y2 this yn बेटा ये तो आ जाएगी टर्म और आर दिस वन 0 दिस वन 0 दिस वन 0 सो वी हैव 1 upon yn into del y1 upon del y1 upon del theta 1 del y1 upon del theta 2 del y1 upon del theta n minus 1. Okay, del y2 upon del y2 upon del theta 1 del y2 upon del theta 2 del y2 upon del theta n minus 1. So r 0 0 0. Okay beta. Then expand beta expand r.
आप आर एन एक्सपेंड कर लिया। देखो बेटा आप किवें लिखदे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो दे विच आ गया माइनस सैकेंड रो दे विच आ गया मीनस अपने एक्सपेंड किनू करना बेटा आर एन। सो बेटा एक पॉइंट नोट किया फर्स्ट रो दे विच प्लस पूरे प्लस आ रहे बेटा सैकेंड रो च माइनस तो स्टार्ट हो रहे थर्ड रो च प्लस तो स्टार्ट हो रहा है बेटा मीनस आप लिख सकते देखो बेटा -1 दी पावर n प्लस 1। देखो जी फर्स्ट रो है बेटा n प्लस वन पॉजिटिव सेकंड रो है और नेगेटिव थर्ड रो है पॉजिटिव फोर्थ रो है सो nth रो अपन पता नहीं बेटा इवन है और इवन रो है ओड रो सो इस करके आप बेटा और की पता -1 दी पावर n प्लस 1 अपॉन yn। सो वी हैव del y1 upon del r sorry r नहीं this okay beta this so del y1 upon del theta 1 del y1 upon del theta 2 del y1 upon del theta 3 up to del y1 upon del theta n minus 1 okay beta next del y2 upon del theta 1 del y2 upon del theta 2 del y2 upon del theta 3 del y2 upon del theta n minus 1 okay beta next del y3 upon del theta 1 del y3 upon del theta 2 del y3 upon del theta 3 del y3 upon del theta n minus 1 एंड लास्ट बेटा इस तो फर्स्ट रो आ गई की आ गई डेल वाई एन माइनस 1 ओके क्योंकि बेटा एन रो वाली कैंसिल होगी इस तो पहले की आएगी बेटा एन माइनस 1 डेल थीटा 1 डेल वाई एन माइनस 1 अपॉन डेल थीटा 2 डेल वाई एन माइनस 1 अपॉन डेल थीटा 3 लास्ट डेल वाई एन माइनस 1 अपॉन डेल थीटा एन माइनस 1। सो बेटा यह मतलब की आ गया बेटा डिटरमिनेंट आ गया लास्ट दे विच। सो बेटा इस तो बेटा y1 बेटा जो आपने पढ़ा सी y1 किस दे इक्वल सी पुत्र y1 r cos थीटा 1 से मींस कली थीटा 1 वाली टर्म हो बेटा बाकी सारे टर्म्स की बन जाएंगे जीरो ओके y2 r sin थीटा 1 cos थीटा 2 बेटा ये टर्म्स एच की आएंगे बेटा फर्स्ट टू टर्म्स आएंगे बाकी सारे की आएंगे बेटा जीरो आई नेक्स्ट फर्स्ट तरफ बाकी सारे जीरो बेटा लास्ट विच ऑल्स आएंगे क्योंकि सब एंड तक की है बेटा पहले सो बेटा और देखियो कितना आ गया -1 दी पावर n प्लस 1 अपॉन yn सो वी हैव del y1 अपॉन del theta 1 अदरवाइज ऑल टर्म्स आर जीरो नेक्स्ट del y2 upon del theta 1 बेटा टू टर्म्स आ गया del theta 2 all terms are zero so next del y3 upon del theta 1 del y3 upon del theta 2 del y3 upon del theta 3 इस तो बाद बेटा जीरो नेक्स्ट बेटा all terms del y n minus 1 upon del theta 1 del y n minus 1 upon del theta 2 del y n minus 1 upon del theta 3 del y n minus 1 upon del theta n minus 1 okay बेटा so बेटा this one is a triangular matrix बेटा triangular matrix देखियो 2 0 0 4 5 0 1 2 3 if we expand this r1 expand 2 into 5 into 3 product of diagonal elements so we have product of diagonal elements so की आ गई बेटा और this one equal to -1 दी पावर n plus 1 upon yn this one equal to -1 दी पावर n plus 1 upon yn into बेटा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट del y1 upon del theta 1 into del y2 upon del theta 2 into
del y3 upon del theta 3 last del yn minus 1 upon del theta n minus 1. ओके बेटा अपने ए टर्म आ गई बेटा. देन ओके बेटा इस तरफ बेटा y1 किस दे इक्वल सी r cos थीटा 1. ओके सो बेटा और डेरिवेटिव -1 दी पावर n plus 1 upon yn. फर्स्ट बेटा इसका डेरिवेटिव कितना आ गया -r sin थीटा 1. ओके सेकंड y2 r sin थीटा 1 cos थीटा 2. बेटा ये तो कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 करना है. सो कितना आ गया -r sin थीटा 1 sin थीटा 2. ओके बेटा नेक्स्ट y3 r sin थीटा 1 sin थीटा 2 cos थीटा 3. सो वी हैव बेटा -r sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3. लास्ट बेटा अप टू लास्ट टर्म बेटा उस दे विच की आ गया बेटा पहले -r sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा n minus 1. सो बेटा ए टर्म्स आप पहले डेरिवेटिव तो बाद आ गया बेटा -r sin थीटा n minus 1. ओके लास्ट बेटा n minus 1 तक. देन बेटा कितने टर्म्स है बेटा 1 2 अप टू लास्ट टर्म कितनी है बेटा n minus 1. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए पुੱਤ n minus 1. हर एक दे विच -r बेटा -r पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने है बेटा n minus 1. सो वी हैव -1 दी n minus 1 r दी पावर n minus 1. ओके बेटा एक r लगाना रहेगा जो एक्सपैंड किया सी बेटा जो एक्सपैंड किया सी बेटा r स्टार्टिंग में मिस हो गया बेटा r लगेगा उत्थे तो गलती हो गई बेटा एक बिकॉज जो बेटा उरे इसी टर्म r 0 0 अपने नु एक्सपैंड किया सी देन मैं सॉरी r लगाना भूल गया बेटा उत्थे. सो बेटा r एक टर्म पहला भी है पुੱਤ r. ओके rn minus 1 ते -1 दी पावर भी कितनी है पुੱਤ n minus 1. ओके बेटा नेक्स्ट मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा देखो दोबारा -1 दी पावर n plus 1 -1 दी पावर n minus 1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने है बेटा n minus 1 ऑल पावर -1 r एक पहला है बेटा उरे. नेक्स्ट r दी पावर कितनी होगी n minus 1. साइन दी साइन देखो बेटा साइन थीटा 1 ऑल टर्म्स दे विच है सो साइन n minus 1 थीटा 1. साइन थीटा 2 पहली टर्म च नहीं है पुੱਤ सो कितना आ गया साइन n minus 2 थीटा 2. ओके क्लियर है बेटा. आई नेक्स्ट साइन n minus 3 थीटा 3 ते साइन स्केयर थीटा n minus 2 इनटू बेटा अप टू साइन स्केयर वैल्यू कर रही है ना बेटा थीटा n minus 2 ते ये सिंगल टर्म च ही रह गया बेटा साइन थीटा n minus 1 अपॉन yn. बेटा yn दी वैल्यू कितनी सी पुੱਤ yn r sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा n minus 2 sin थीटा n minus 1. सो बेटा 1 टर्म कैंसिल होगी -1 दी पावर 2n की होगी पुੱਤ इवन r दी पावर n minus 1. ओके r दी पावर n minus 1 बेटा एक साइन है साइन कैंसिल हो गया साइन n minus 2 थीटा 1 साइन n minus 3 थीटा 2 लास्ट साइन थीटा n minus 2. सो बेटा यही बेटा अपने की करना सी पुੱਤ प्रूव. सो बेटा ये एग्जांपल सी जैकोबियन दी. फिर नेक्स्ट बेटा ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ बेटा एग्जांपल ऑफ जैकोबियन. थैंक यू वेरी मच.